پوائنٹ کنٹرول یا پھر مسائل آؤٹ آف کنٹرول، بار بار سخت لاک ڈاؤن کا اعلان کرنے والے سائیں مراد علی شاہ بھی سندھ میں لاک ڈاؤن میں بھرپور نرمی دکھانے پر راضی ہو گئے۔ حتمی فیصلہ کل متوقع۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ لاک ڈاؤن کو تنہا برقرار رکھنا ممکن نہیں، عوام کو بھوک سے نہیں مار سکتے۔ صدر مملکت کل لاک ڈاؤن سے متعلق واضح کر دیں گے۔ صدر مملکت کراچی پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اہم اجلاس کی صدارت کریں گے۔ سندھ کابینہ کے اراکین اور وفاق کے نمائندے شریک ہوں گے۔ لاک ڈاؤن کے خاتمے کا اعلان بھی متوقع۔ ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں دنیا بھر میں لاک ڈاؤن کی مدت پر بحث جاری ہے، انشاءاللہ کورونا پر قابو پائیں گے اور مضبوط قوم بن کر ابھریں گے۔ مہنگائی کے مارے عوام کو بڑا ریلیف ملنے کا امکان۔ پیٹرول کی قیمت میں 20 روپے 68 پیسے کمی کی تجویز۔ لائٹ ڈیزل 24 روپے 57 پیسے فی لیٹر سستا کرنے کی سفارش۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 33 روپے 94 پیسے سستا ہونے کا امکان۔ اوگرا نے سمری ارسال کر دی، حتمی منظوری وزیر اعظم دیں گے۔ ملک میں احتساب کا سب سے بڑا ادارہ گرفتاری سے عاری۔ چیئرمین نیب سے ملزمان کی گرفتاری کا اختیار واپس۔ ملزمان کو 90 دن حراست میں رکھنے اور کسی مقام کو سب جیل قرار دینے کا اختیار بھی ختم۔ ریفرنس دائر ہونے کے بعد عدالت ملزم کے وارنٹ گرفتاری جاری کر سکے گی۔ وزارت قانون نے نئے نیب ترمیمی آرڈیننس کا مسودہ تیار کر لیا، منظوری کے لیے وزیر اعظم کو ارسال۔ نیب 50 کروڑ روپے سے کم کی کرپشن پر کارروائی نہیں کر سکے گا۔ کرپٹ افراد سزا کے بعد بھی پلے بارگین کر سکیں گے۔ آرڈیننس کا اطلاق تمام زیر التوا مقدمات پر بھی ہوگا۔ عوامی عہدیداروں کے خلاف کارروائی کے لیے مالی فوائد کے شواہد دینا لازمی ہوں گے۔ رضاکارانہ رقم واپسی پر 5 سال کی نااہلی کا سامنا کرنا ہوگا، مسودے کا مطالبہ۔ نیب ترمیمی آرڈیننس کا مسودہ کس نے تیار کیا اور کس نے جاری کیا؟ وزارت قانون نیب آرڈیننس سے لا علم۔ وفاقی حکومت میں نیب قانون میں ترمیم کے لیے 2 گروپ سامنے۔ وزارت قانون کے مطابق ترمیمی آرڈیننس کا مسودہ پارلیمانی امور افیئرز سے جاری ہوا۔ وزیر قانون فاروق نسیم نے مسودہ جعلی قرار دے دیا۔ معاون خصوصی احتساب شہزاد اکبر نے نیب مسودے کی تردید کر دی۔ کہا ترمیمی آرڈیننس کی تیاری میں نیب سے بھی مشاورت کی جائے گی۔ اختیارات محدود کرنا اپوزیشن کی خواہش ہے۔ میڈیا پر چلنے والا مسودہ درست نہیں۔ پی ٹی آئی شفاف احتساب پر یقین رکھتی ہے۔ بزنس کمیونٹی کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ نیب آرڈیننس سے کئی سیاستدان اور تاجر مستفید ہوں گے۔ آصف زرداری، شہباز شریف، فریال تالپور، حمزہ شہباز، بلاول بھٹو، سعد رفیق، خورشید شاہ اور انور مجید کے خلاف ریفرنس اور تحقیقات معطل ہو جائیں گی، ذرائع کا دعویٰ۔ وزیر اعظم عمران خان کا ایرانی صدر حسن روحانی سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ کورونا وائرس کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کی مسلمانوں کے خلاف بڑھتی نفرت کی شدید مذمت۔ پاکستان اور ایران کا 2 طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ آرمی چیف کا کنٹرول لائن کا دورہ، اگلے مورچوں پر تعینات جوانوں سے ملاقات۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں بھارت کو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاک فوج معصوم شہریوں اور وطن عزیز کے چپے چپے کا دفاع کرے گی۔ بھارت میں مذہبی آزادی سے متعلق امریکی رپورٹ نے مودی سرکار کو بے نقاب کر دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں رپورٹ میں مسلمانوں کے خلاف
मुतासिबाना इक़दामात को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। मकबूजा कश्मीर में मुजालिम कम ना हो सके। कर्फ्यू के बाद कोरोना लॉकडाउन से शहरी घरों में कैद। मरीजों की तादाद 566 तक पहुंच गई। हामिला खातून भी कोरोना का शिकार। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भारतीय हुकूमत पर मरीजों से तासुब का इल्जाम। भारतीय फौज के जाली सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग से मजीद कश्मीरी शहीद। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और मुआविन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। सेक्रेटरी इत्तलात और वजारत के ज़ेली इदारों के सरबराहान की ब्रीफिंग। दोनों का वजारत इत्तलात को मजीद फ़ाल बनाने के आज़म का इजहार। सरकारी मुलाजिमीन के गिर्द घेरा तंग। नया कानून आ गया। सरकारी मुलाजिम अपने अफसर की बात ना मानने पर जबरी रिटायर किया जा सकेगा। सरकारी मुलाजिमीन की जबरी रिटायरमेंट के लिए कमेटियां भी कायम। सिंध के तमाम निजी स्कूल अप्रैल और मई की फीसों में 20% रियायत देने के पाबंद होंगे। वालिदैन से ली गई फीस वापस होगी या आइंदा माह की फीस में एडजस्ट किया जाएगा। तमाम निजी स्कूल तदरीसी और गैर तदरीसी अमले को मुकम्मल तनख्वाह की अदाई के भी पाबंद होंगे। सूबाई महकमा तालीम ने स्पेशल ऑर्डर जारी कर दिया। बिलावल भुट्टो का पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास से खिताब। कहा पार्लिमानी निगरानी के लिए कौमी असम्बली का इजलास बुलाना इंतहाई जरूरी है। स्पीकर ऑफिस के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान में कोरोना मौत बांटने लगा। पहली बार 24 घंटों में 26 हलाकतें। तादाद 335 हो गई। 15,000 से जायद मरीज ज़ेर इलाज। पंजाब 5,827 मरीजों के साथ सर फहरिस्त। खैबर पख्तूनख्वा में 2,160, बलूचिस्तान में 915, गिलगित में 330, इस्लामाबाद में 297 और आज़ाद कश्मीर में 65 अफराद में कोरोना की तशख़ीस। मसीहाओं के बाद मुहाफिज भी कोरोना वायरस के निशाने पर। कराची में सिंध पुलिस के 60 से ज्यादा एहलकार अफसरान कोरोना वायरस का शिकार। जानलेवा वायरस का शिकार ज्यादातर दफातर में काम करने वाले एहलकार और अफसरान हुए। अमरीका में गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,429 अफराद मोहलिक वायरस से जान की बाजी हार गए। मरने वालों की तादाद 59,000 से तजावुज़ कर गई। 10,35,000 मरीज ज़ेर इलाज। अमरीका में मेडिकल अमले को खराज तहसीन पेश करने के लिए एयर शो का सिलसिला जारी। अमेरिका में कोरोना के मरीजों की बड़ी तादाद की वजह ज्यादा टेस्टिंग है। अमेरिकी सदर ने वाज़ेह कर दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें वर्से में टूटा हुआ सिस्टम मिला। इंतजामिया और इदारे बेहतरीन काम कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा आएगा जब अमेरिका में कोरोना केस 0 हो जाएंगे। दुनिया भर में कोरोना की दहशत। हलाकतों की तादाद 2,19,000 से तजावुज़ कर गई। 31,38,000 से जायद केस रिपोर्ट। इटली में 27,000, स्पेन और फ्रांस में 23,000 से जायद हलाकतें। बरतानिया और जर्मनी में सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक। आलमी इदारा सेहत की तमाम ममालिक को डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। सऊदी हुकूमत का बड़ा इक़दाम। फर्जंदान इस्लाम अब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दे सकेंगे। हरम शरीफ आम नमाजियों के लिए खोलने का फैसला। नमाजी एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल के पाबंद होंगे। रमज़ान में हुकूमती पैकेज भी अवाम को रिलीफ देने में नाकाम। अशियाए खुरोनोश महंगी होने के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स में खजूर और बेसन की किल्लत, आवाम परेशान।
कराची में गवालों ने रमजान में शहरियों को छुट्टी का दूध याद दिला दिया। सरकारी रेट पर फी लीटर दूध 94 रुपए के बजाय मनमाने रेट्स पर फरोख्त होने लगा। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। शहरियों का हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा। कोई मदद को आया ना राशन पहुंचाया। लॉकडाउन से घर में भूख और गुर्बत के डेरे। सजानी टाउन कराची के खुददार रिहायशी ने 2 वक्त की रोटी के लिए हाथ फैलाने के बजाय घर का सामान बेच डाला। क्वेटा में सहर इफ्तार के औकात में बिजली और गैस की लोड शेयरिंग ने शहरियों को दोहरी अजियत में मुब्तला कर दिया। सहरी और इफ्तार की तैयारी में खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना। सजावल में गैर मेयारी राशन की तकसीम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर सजावल से 8 मई को मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली। सजावल में कितने लोगों को राशन तकसीम किया गया, कितने मुस्तहिक बाकी हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार। सिंध हुकूमत ने 2 करोड़ का फंड दिया था, राशन तकसीम कर दिया। डिप्टी कमिश्नर सजावल का जवाब। डिफेंस कराची के बेकरी में धमाके में दहशतगर्दी के कोई शवाहिद न मिले। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जाए बकवा को क्लियर करार दे दिया। बीडीएस की रिपोर्ट सामने आ गई। ग्रैंड हेल्थ अलायंस और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने मुतालबात पूरे न होने पर एहतजाज का दायरा कार बढ़ाने और तमाम अस्पतालों में धरना देने की धमकी दे दी। कुवैत का जुर्रतमंदाना इकदाम। इस्लामी ताउन की तंजीम ओआईसी से भारत में इस्लामोफोबिया का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मोदी सरकार को कुवैत का ये इकदाम बुरा लग गया। शाम धमाके से लरज़ उठा। ट्रक धमाके से 46 अफराद जान से गए, 43 जख्मी। धमाके के बाद आग ने करीब की दुकानों और गाड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। धमाके की जिम्मेदारी ताहाल किसी ने कबूल नहीं की। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के नवाह में खुदकश धमाका। 3 शहरी जान से गए जबकि 15 जख्मी हो गए। कोटली आज़ाद कश्मीर का शहरी श्रीलंका की जेल में गुज़िश्ता 3 साल से कैद। दानिश के बूढ़े वालिदैन की वज़ीर आज़म से बच्चे की रिहाई की अपील। पाकिस्तान के मारूफ स्पिनर सईद अजमल ने अब्दुल कादिर को अपना फेवरेट क्रिकेटर करार दे दिया। वीडियो बयान में कहा कि अब्दुल कादिर की गुगली ने शोहरत हासिल की, वो इस दौर में होते तो उनकी जोड़ी जरूर बनती। कैंसर में मुब्तला नामवर भारतीय अदाकार इरफान खान 54 साल की उम्र में मद्दाहों को उदास कर गए। अपनी बेमिसाल, बेसाख्ता और बर्जस्ता अदाकारी की वजह से इरफान खान हमेशा मद्दाहों के दिलों में जिंदा रहेंगे। किससे बातें कर रही थी? कौन था? सब जगह सोए हम जागे, तारों से करे बातें, चांदनी रातें। बकवास बंद कर, बंद कर बकवास। शहनशाह ज़राफ़त का खिताब पाने वाले नामवर पाकिस्तानी कॉमेडियन मुनव्वर ज़रीफ को मद्दाहों से बिछड़े 44 बरस हो गए। उनकी साख्ता अदाकारी आज भी शायकीन के दिलों में जिंदा है। और चीनी शहरी ने कमाल ही कर दिया। 30 फुट की बुलंदी पर उड़ने वाली मोटरसाइकिल बना ली। बाइक पर प्रवास की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।